Hello everyone, welcome to Learn Lifeology. So here in this video we are going to talk about your unit 4, that is microbial growth. Unit 4 of BSc semester 1, and in that paper 1 fundamentals of microbiology, and uska jo aapka last unit hai microbial growth, that we are going to cover here the complete unit. So let's see what are the content. सो हियर आर द कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू सी थ्रू आउट द वीडियो. सबसे पहला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं दैट इज द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. हाउ दिस बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन अकर्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. कैसे डिवाइड होता है सेल एंड कैसे नंबर उनका इंक्रीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू सी द एक्सेनिक कल्चर, क्या होता है. उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ ग्रोथ कर्व. व्हाट इज ग्रोथ कर्व, व्हाट आर द फेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व एंड उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. After that, we'll see in brief continuous culture with respect to chemostat and turbidostat. दोनों की बात करेंगे continuous culture में. Then about the synchronous growth. उसके बाद आता है आपका डायोक्सिक कल्चर या डायऑक्सी जिसको आप कहते हो, या डायोक्सिक ग्रोथ क्या होती है. एंड एट लास्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइक्रोबियल ग्रोथ. तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट starting from the reproduction we are going to study all the growth phases in detail in different types of cultures, how the growth is occurring and multiplication is occurring. So let's start with the first point, that is bacterial reproduction. So here is the point number 1, or you can say the starting of our unit, bacterial reproduction. So everyone is aware about the process of reproduction, means the living organism when they increase in number, that we call the reproduction. जब वो अपना कॉपी बनाता है कोई और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बनता है तो दैट वी कॉल द रिप्रोडक्शन. सो एज इन हायर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन अकर लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, बट हियर द रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज completely different in the bacteria. These bacteria, they generally reproduce through the mechanism or through the process of binary fission. बाइनरी फिशन का मीनिंग है कि एक बैक्टीरिया है एंड टूट कर दो हो गए, तो अभी दोनों बैक्टीरिया नए एज अ न्यू लाइफ वो अपना जिंदगी जीने लगेंगे, दैट इज द बाइनरी फिशन. जो नया ओल्ड बैक्टीरिया होता है दैट वी कॉल द मदर सेल, एंड जो नए बनेंगे दैट दोज वी कॉल डॉटर सेल्स. तो फ्रॉम वन मदर सेल्स टू डॉटर सेल्स दे आर फॉर्म. So this is the division of one bacterium into two daughter cells by binary fission. Simple reproduction जो हम देखते हैं बैक्टीरिया में, that is through the binary fission, and that's why it is quite easy to study. So resulting daughter cells are identical to mother cells. This is the very important fact about the binary fission और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं वो अपने मदर सेल की एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे. एग्जैक्ट कॉपी इन द सेंस दे आर हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड हेंस लोकल डबलिंग ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर्स. एंड इसी के कारण ये प्रोसेस को बोला जाता है लोकल डबलिंग. मतलब आपके पास 10 बैक्टीरियल सेल थे, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो 20 बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे एंड वो उनकी एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे अपने पेरेंट सेल्स की. So that is the bacterial production. Let's see this in little bit detail, कैसे होता है डिवीजन होता है. So here in this diagram you can see how these bacterial cells they are dividing. It's a quite simple process and very basic points are mentioned here. So bacteria, first of all, they increase in cell size and reproduce by cell division. तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि बैक्टीरिया को सेल साइज में बड़ा होना है, मतलब जिसको हम मैचुरेशन बोल सकते हैं. When the bacterial growth completes, जब उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तब मल्टीप्लिकेशन होता है, जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं. तो इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट ग्रोथ, एंड हर एक बैक्टीरिया का ग्रोथ टाइम पीरियड अलग होता है. So you can see here bacteria grow to a fixed size and then they reproduce through binary fission, which is a form of asexual reproduction. Now remember this point, bacterial binary fission is a kind of asexual reproduction as the single cell is involved. कोई मेल फीमेल डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंगल सेल टूट कर दो सेल्स बन रहे हैं, that's why it is a type of asexual reproduction. We have seen number of types of asexual reproduction. binary fission होता है, fragmentation होता है, budding होता है, जिसमें से fragmentation एक प्रोसेस है. Then under optimal conditions, now this is second important thing for the binary fission और reproduction की conditions optimal होनी चाहिए, favorable होनी चाहिए. Bacteria can divide rapidly.
अब ऑप्टिमल कंडीशंस का मीनिंग क्या होता है कि प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी देयर, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनको यूज करने के लिए वहाँ पे न्यूट्रिएंट होना चाहिए अवेलेबल, देन एंड देन ओनली दिस बैक्टीरिया डिवाइड। देन दूसरी बात, एनवायरमेंटल जो पैरामीटर्स है वो सही होना चाहिए, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग। देन दिस बैक्टीरिया दे शो अ रैपिड डिवीजन. So here the bacterial population, it is said that they divide after every 20 minutes. For the E. coli, we can take the example of E. coli, which is the most favorite bacteria of microbiologist. तो Escherichia coli को हम हर जगह लाकर रख देते हैं as ideal organism, and इसका जो doubling period है या reproduction time है that is 20 minutes. Again it varies from bacteria to bacteria. कुछ bacteria का hours में भी है, they even requires 12 hours for the multiplication, and generally minutes में होता है, and for E. coli it is 20 minutes. Now in cell division, two identical clone daughter cells are produced. Now you can see here in the diagram कैसे proceed करती है ये process. हमारे पास एक fully grown bacteria रहेगा. Here the cell wall, cell membrane and nucleus, they are shown here. The nucleus, first of all, it will get elongated. इलोंगेटेड का मीनिंग हो रहा है कि जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा सेल साइकिल में कि अभी डिवाइड होना है, एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्लिकेशन अकर्स. पहले तो सेलुलर कंटेंट सब बढ़ जाएगा, मतलब बैक्टीरिया साइज में इंक्रीज हो जाएगा, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो रहा है, रिप्लिकेट हो जाएगा. 2 कॉपीज इसकी बनना शुरू हो गई है, रिप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जो हमको इलोंगेटेड न्यूक्लियाइड फॉर्म में दिखता है. Then next step what happens here, the septum formation starts. एक transverse septum, एक partition बनना शुरू हो जाता है, and it occurs through the cell wall and cell membrane. ये cell wall and cell membrane साथ में अंदर की तरफ protrude करेंगे and they will form a partition, a septum. And जब ये septum बनने की process start हो जाती है तो nucleus 2 part में divide हो जाएगा. Nuclear division occurs here, and then this septum formation completes. पूरा के पूरा एक ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाएगा जो बीच में एक कंप्लीट वॉल खड़ी कर देगा सिंगल बैक्टीरियम के अंदर. ओके, सो ट्रांसवर्स सेप्टम बिकम्स कंप्लीट, एंड जैसे ये कंप्लीशन होता है प्रोसेस, दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं. दे विल नो मोर रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर. दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड द डॉटर सेल्स. सो दैट्स व्हाई एज न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग बाय सिंपल replication, this genetic material whatever present here, the DNA content is exact copy of the parent cell, and not even the exact copy of the parent cells. These two daughter cells, they are exact copy of each other, except of few mutations जिसको हम अभी यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे as you are in BSc फर्स्ट ईयर. ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि these two daughter cells, they are exact copy of each other, or they are clones of each other. That's why it is called two identical clone daughter cells are produced through the binary fission. So that is the simple reproduction in the bacteria. Now next, let's talk about the axenic culture. अब एक्जेनिक कल्चर के कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, बट टू रिमेम्बर एक्जेनिक कल्चर आपको इतना ही याद रखना है, इट इज अ काइंड ऑफ प्योर कल्चर. एक प्योर कल्चर, प्योर का मीनिंग है कि जिसमें किसी भी टाइप का कंटेमिनेशन ना हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस एक्जेनिक कल्चर दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन. So let's see, it is a pure culture without any bacterial associate or any other metabolizing cells. दोनों भी चीजें नहीं होनी चाहिए. Now it is very difficult to achieve and maintain in the laboratories as contamination बहुत easily हो जाता है unless and until you maintain a proper conditions in your laboratory. प्रॉपर टेक्निक्स आप जब तक नहीं यूज करते हो, आपका लेबोरेटरी पूरा क्लीन नहीं होता है, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एक्जेनिक कल्चर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड और यू कैन से डेवलप्ड बाय डायमंड इन 1961. तो ये कंसेप्ट सबसे पहले 1961 में डायमंड ने लाया है. एक्जेनिक कल्टिवेशन हैज एनेबल्ड द प्रिसाइज एंटीजेनिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज, एंड ये इसका आप एप्लीकेशन बोल सकते हो. एंड यहाँ इन्होंने जो डायमंड ने किया था, दे वर वर्किंग ऑन सम आई थिंक सम यूकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, एंड देयर दे डेवलप्ड सम एक्जेनिक कल्चर्स. तो उसका एग्जैक्ट डिटेल तो यहाँ डाला हुआ नहीं है, बट आप ऐसे यहाँ पे समझ कर चलो कि बहुत ही प्योर कल्चर जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, those are the axenic culture as it is given here. Axenic cultures are uncontaminated, free from germs or pathogenic organisms. ठीक है, तो एक्जेनिक से ही फिर बना है मोनोजेनिक. लाइकवाइज आप जितने एसोसिएट साथ में यूज करोगे वैसे बन जाता है कल्चर. फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
that is containing only one organism. Now, it is a culture of an organism that is entirely free from contaminating organisms और completely free of presence of other organisms. तो उसी को हम एक्सेनिक कल्चर्स कहेंगे. बहुत सिंपल है, आप एक वर्ड में याद रख सकते हो. प्योर कल्चर्स आर कॉल्ड एक्सेनिक कल्चर्स. दैट्स इट. Okay, so this was a short point in this unit. Now let's see the next. बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. अभी हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है. बिकॉज एज वी हैव सीन दिस बैक्टीरिया दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन. मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनके ग्रोथ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं. एंड ये मैथमेटिकल फॉर्म जो स्टडी करने का है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, विच इज कॉल्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. नाउ बैक्टीरियल ग्रोथ इन बैच कल्चर. अभी ये थोड़ा सा नया वर्ड आ गया है आपके लिए, बैच कल्चर हैज 7 डिफरेंट फेजेस. बैच कल्चर का मीनिंग होता है कि आप छोटे छोटे स्टॉप लेकर ये काम कर रहे हो, लाइक जिसमें स्टार्ट एंड एंड दोनों भी है. प्रोसेस स्टार्ट भी हो रही है, खत्म भी हो रही है. बैक्टीरिया का बर्थ भी हो रहा है, वहाँ पे डेथ भी हो रही है. उसको हम बैच कल्चर बोलते हैं. दूसरा होता है कंटिन्यूअस कल्चर. कंटिन्यूअस कल्चर में वी मेंटेन द बैक्टीरिया, वी डोंट अलाउ देम टू डाई. कंटिन्यूअस आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करते रहोगे एंड दैट इज कॉल्ड दी कंटिन्यूअस कल्चर. जबकि बैच कल्चर में आपका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, इट इज अ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई. सो हियर यू कैन सी देयर आर 7 फेजेस. एक्चुअली 4 फेजेस ही होते हैं. फर्स्ट इज लैग फेज, आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है. सेकेंड दिया हुआ है अर्ली लॉग और एक्सपोनेंशियल. सेकेंड फेज होता है लॉग फेज. ये दोनों के बीच में यहाँ जो स्लाइड कर्व दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेकेंड फेज दिखेगा, अर्ली लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. देन आता है लॉग फेज, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहेंगे. विल सी ऑल दिस फेजेस इन डिटेल वन बाय वन. उसके बाद में नेक्स्ट होता है स्टेशनरी फेज. तो स्टेशनरी फेज और लॉग फेज से बीच में ये जो कर्व दिख रहा है, जहां पर ग्रोथ थोड़ी सी हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द अर्ली स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरह रुक जाती है. आपको सिंपल प्लेटू दिख रहा है यहाँ पर. एंड देन अर्ली डेथ. हियर दिस कर्व इज फॉर अर्ली डेथ, मतलब कुछ बैक्टीरिया मरने शुरू हो गए, डेथ की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, एंड लास्ट होता है डेथ फेज. तो वी ड्रॉ दिस ग्राफ बाय टेकिंग 2 एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आप लेते हो टाइम, कितने टाइम में ये सारी प्रोसेस हो रही है, एंड वाई एक्सिस पे आता है नंबर ऑफ सेल्स, कि आपका स्टार्टिंग में कितना सेल्स था. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लैग फेज. लैग फेज में आपका कोई ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया साइज में इंक्रीज होता है. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है हियर फ्रॉम द अर्ली लॉग और अर्ली एक्सपोनेंशियल फेज. लैग फेज में ये एक टाइप का आप इसको बोल सकते हो, हियर दिस बैक्टीरिया इट विल ट्राई टू बिकम फैमिलियर विद द एनवायरमेंट. जो आपने उसको न्यूट्रिएंट्स दिए हैं उसके साथ वो फैमिलियर होना चाहेगा वो. तो दैट इज कॉल्ड द लैग फेज. उसको यूज टू हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए वो अपना एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट कर लेगा. तो दिस मच पीरियड इज कॉल्ड द लैग फेज. ठीक है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस फेजेस इन डिटेल वन बाय वन. So here are the phases of the growth cycle we are going to see in detail. हमारा सबसे पहला फेज है लैग फेज. लैग फेज जो होता है, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ मल्टीप्लिकेशन फेज. यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं होगा बैक्टीरिया का. इट इज़ जस्ट अ फेज वेयर बैक्टीरियल अडेप्टेशन टू द ग्रोथ कंडीशंस इज अकरिंग. मीन्स आपने जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, बैक्टीरिया विल ट्राई टू एक्लिमेटाइज इन दैट एनवायरमेंट. वो एंजाइम सिस्टम अपना एक्टिवेट करेगा टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड इट विल टेक सम टाइम to get acclimatized to that particular conditions, environmental conditions, nutrients present and everything, and that's why this phase is called lag phase. It is period where the individual bacteria are maturing and not yet able to divide. So here just a maturation of bacteria will occur. That means they will increase in size, growth होगा, नया environment को वो adapt कर लेगा, acclimatize कर लेगा, but division नहीं होगा.
The next phase is exponential phase, which is also called the log phase or logarithmic phase. दिस इज एक्चुअल द डिवीजन फेज जहाँ पर बैक्टीरिया का डिवीजन होता है, बिकॉज लैग फेज में बैक्टीरिया कम्प्लीटली एक्लिमेटाइज हो जाता है इन्वायरमेंट को, एंड देन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, बाइनरी फिशन इट विल स्टार्ट. इट इज कैरेक्टराइज बाय द सेल डबलिंग एट कॉन्स्टेंट रेट विथ ईच टाइम पीरियड. मीन्स वी नो दैट द बैक्टीरिया दे आर डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिशन, सो एट कॉन्स्टेंट रेट बैक्टीरिया का नंबर डबल होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 100 बैक्टीरिया इनिशियल, और उसका अगर डिवीजन टाइम डबलिंग टाइम 20 मिनट्स है, आफ्टर 20 मिनट्स यू विल गेट 200 बैक्टीरिया, आफ्टर 40 मिनट्स you will get 400 bacteria, then after 60 minutes you will get 800 bacteria. That means the number is increasing exponentially, and that's why this phase is called exponential phase. Growth stops when the medium's nutrients are depleted or waste products accumulate. We have seen the growth curve. Exponential rate एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा रहेगा एट विच द ग्रोथ विल स्टॉप, मीन्स द मल्टीप्लिकेशन विल स्टॉप, फर्दर मल्टीप्लिकेशन विल नॉट ऑकर. एंड मल्टीप्लिकेशन स्टॉप होने के दो रीजंस हो सकते हैं. वन इज द मीडियम न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, कि आपके मीडियम में न्यूट्रिएंट्स खत्म होने शुरू हो गए हैं, एंड सेकेंड रीजन इट कैन बी वेस्ट एक्यूमुलेशन, कि बैक्टीरिया ने जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाए हैं उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है, एंड दैट एक्यूमुलेशन इज कॉजिंग सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन दोज बैक्टीरिया एंड दे आर नॉट अलाउइंग दोज बैक्टीरिया टू ग्रो. ओके, देन अपलेटिव फेज विल कम, कि अभी बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो आपका वाई एक्सिस पे जो फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये अब कांस्टेंट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट फेज विल कम दैट इज द स्टेशनरी फेज. Here in the stationary phase, the growth rate slows down due to nutrient depletion and accumulation of toxic waste products, as we have seen. This phase is reached as bacteria begin to exhaust the nutrients available to them. Now the beginning of this phase is exhaust of the nutrients. Nutrients कम हो रहे, ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, या न्यूट्रिएंट्स अभी फर्दर न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं मीडियम में, तो स्टेशनरी फेज आपका रहेगा. स्टेशनरी फेज कब तक रहेगा? दिस फेज इज कांस्टेंट as the rate of bacterial growth is equal to the rate of bacterial death. As we know, the bacteria they are growing exponentially, and similarly उनका डेथ रेट भी ऐसे ही होता है जैसे ग्रोथ रेट होता है. तो आपको स्टेशनरी फेज एक पॉइंट तक दिखेगा, बट जब वहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का नंबर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. आपका जो वाई एक्सिस का फैक्टर है वो नीचे आने लग जाएगा, एंड दैट लास्ट फेज वी कॉल दी डेथ फेज और डिक्लाइनिंग फेज, where bacteria run out of nutrients and they die. So these are the four phases of the growth of bacteria. When we study growth curve, these four major phases, we can see these four major phases, and बाद में जो intermediate phases है that also we have talked already. Now let's talk about the mathematical expression of growth. So mathematical calculation of the growth, how it is calculated. As we have seen, the growth is exponential in the bacteria. The number of organisms grown after a t period can be calculated according to the following equation. यहाँ पर आपको equation दिया हुआ है, तो after a particular time t which is fixed for the bacteria, आपको genus to genus, species to species ये time period t vary करता है. Like for example, E. coli they are having doubling time that is 20 minutes. So after every 20 minutes you will get doubled bacterial population. So here the growth, it can be given, the mathematical expression for growth is nt equals to n0 into 2n. Here nt is the cell number at time t, n0 is the starting number at time 0, and n number of doublings, number of generation. Here it is 2 raised to the power n, और ये रहेंगे कितने जनरेशन्स वो हुए हैं. एक जनरेशन होगा तो आपको डबल बैक्टीरिया मिलेंगे, इनिशियल से डबल. अगर 2 जनरेशन होता है तो 4 टाइम्स मिलेगा इनिशियल से. तो इट इज़ एक्चुअली पावर, आई थिंक इट इज़ some typing mistake, 2 raised to the power n, it should be 2 raised to the power n, please make that correction. So next term is, when we talk about the growth, the next important term is specific growth rate. So what is specific growth rate? It is the number of divisions per cell per unit time. How many divisions the cell is undergoing in unit time, that we call the specific growth rate. It depends upon the growth conditions which affects the frequency of cell division.
So that's why the growth conditions, they are very important, the intrinsic as well as extrinsic conditions, and they will decide the specific growth rate for a particular organism. Bacterial growth is studied in batch culture containing one medium and continuous culture containing many media. So we are going to talk about the continuous culture in next slide. So chemostat culture is done by incubating the organism in closed vessel. That is about the specific growth rate, which is actually not that much important for you, but still I have included this point. Is our next point is continuous culture, which is there in your syllabus. So let's talk about the continuous culture. As we have seen growth curve with respect to the batch culture, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का कल्चर आप देख रहे हो अपार्ट फ्रॉम द बैच. इन बैच कल्चर द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट वाज लिमिटेड, बट कंटिन्यूस कल्चर में ऐसे नहीं होता है. यू कैन मेंटेन इट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, कंटिन्यूसली आप इसको मेंटेन कर सकते हो. द रीज़न इज दैट वहाँ पर कंटिन्यूस इनटेक ऑफ मीडियम होता रहता है, मीडियम कंटिन्यूसली ऐड होता रहता है, बैक्टीरिया को कंटिन्यू फ्रेश मीडियम मिलता रहेगा, एंड साइमल्टेनियसली जो वेस्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो भी रिमूव किया जाता है. तो कंटिन्यूस कल्चर इज एन ओपन कल्चर सिस्टम फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स in which fresh sterilized medium is introduced at a steady flow rate maintain किया जाएगा, that is very important, and from which the culture fluid emerges at the same rate. तो वहाँ पर आपको एक steady, एक constant आपको इनलेट एंड आउटलेट फ्लो मिलता रहेगा इन कंटिन्यूस कल्चर. In both experimental research and industrial processes, it is often necessary to maintain a bacterial population growing at particular rate in a log phase. That's why for the research as well as industrial process, this log phase is very important, or exponential phase is very important, because it is actually a productive phase when we are talking about the mass of organism. The condition is known as steady state growth or continuous growth. In the case of continuous culture, there is no stationary phase and decline phase due to the addition of fresh medium continuously. That is again an important point. Here we can obtain only lag phase and log phase, and again in continuous culture, the lag phase, it can be reduced to a much smaller, you can say, time period. For the following reasons, the lag phase in continuous culture will be long if the inoculum is taken from old culture, if the inoculum is synthetic, if the culture is incubated at unfavorable temperature. So we are not interested in long lag periods. They are not going to be productive in a commercial aspect. So that's why in continuous culture we try to reduce the lag phase, and that's why this reason should be overcome to reduce the lag phase. So let's talk about the chemostat, which is one of the continuous culture. So chemostat here, as you can see in the diagram, इनफ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम का हियर, एंड आउटफ्लो हो रहा है मीडिया का एंड माइक्रोबियल सेल्स का इनटू द कलेक्शन वेसल. एंड ओवरऑल यहाँ पर जो मीडिया होता है, क्वांटिटी होता है, दैट इज मेंटेन कांस्टेंट. जो अंदर आपका जो भी मीडिया फील्ड रहेगा उसको कांस्टेंट रखा रहेगा, एंड बाकी कंडीशंस तो मेंटेन की जाती है. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस कल्चर मेथड्स, अमंग देम द कीमोस्टैट मेथड, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंटिन्यूस कल्चर. Chemostat suppose steady state concentration of growth limiting substrates to be kept at set level in the culture fluid, and that's why it is called chemostat, because the growth limiting substrate, they to be kept at set level, यहाँ पर इनका लेवल मेंटेन किया जाता है, which ends in extremely reproducible steady state growth situation in which variations in cell density, physiological state and medium composition of the culture आर अनट्रेसेबल. तो ये सारे वेरिएशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको नहीं आती है कि फिजियोलॉजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, मीडियम कंपोजिशन चेंज हो रहा है. दे आर अनट्रेसेबल हियर. All the environmental parameters such as pH, oxygen tension, population density and concentration of excretion products can be easily controlled within the continuous culture. So that is the chemostat, where chemical conditions are maintained constant, constant inflow, constant outflow, and यहाँ पर आपका जो environment रहेगा, production रहेगा, वो as compared to other methods यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, productive होता है. Then turbidostat. Now this turbidostat is again a type of continuous culture, another type of continuous culture in which internal culture control the specific growth rate. Here internal culture is controlling the specific growth rate. There the in chemostat chemicals सब कुछ control कर रहे थे, हमको chemicals पे वहाँ पे हम more concentration we gives on chemicals, and here internal culture
Culture biomass maintains at a constant by measuring the optical density. Here we will maintain the culture biomass at constant rate, and it is done by measuring it by the optical density. OD we know about the OD, absorbance continuous, यहाँ पे absorbance यहाँ पर आपको readings मिलती रहेंगी, and through that absorbing region inflow and outflow maintain किया जाता है, and that's why it is called the turbidostat. Turbidity is maintained at certain level. When turbidity comes to a certain level, medium pump switches on and adjusts turbidity to the required layer. For example, यहाँ पर अगर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है तो मीन्स टर्बिडिटी ज़्यादा हो गई है. टर्बिडिटी जैसे ही ज़्यादा होगी तो आउटफ्लो से बैक्टीरिया को निकाल दिया जाएगा एंड इनफ्लो से एक्स्ट्रा मीडियम डाल दिया जाएगा टू मेंटेन अ पर्टिकुलर टर्बिडिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टर्बिडोस्टैट. इंटरनल कल्चर वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट in this system. Furthermore, the growth rate of the microbes does not depend on a single component of culture system, culture medium, which is the condition maintained in the chemostat. In chemostat एक single component control करेगा complete आपकी process को, and neither does the flow rate remains constant. And again in chemostat we maintain steady flow rate. Flow rate भी constant होता है, तो that are actually the differences between the chemostat and turbidostat. Now let's talk about some similarities between chemostat and turbidostat, how they are similar. Chemostat and turbidostat both are continuous culture. Both of them are open culture system, मतलब continuously inflow outflow दोनों में भी हो रहा है. In both the system culture volume is constant, overall volume constant रहेगा. The environmental conditions are constant in both the systems. In both system culture duration is indefinite. You can run this system फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड. जब तक आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करते रहोगे तब तक आप ये सिस्टम कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू शट डाउन दिस सिस्टम और दिस प्रोडक्शन. सो दैट वाज ऑल अबाउट कीमोस्टैट एंड टर्बिडोस्टैट. And the next point is asynchronous growth. अब synchronous growth क्या होती है? Synchronous growth is the growth of bacteria such that all the bacteria are at the same stage in their growth cycle. मीनिंग ये है कि जब आपका बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है मीडियम में तो सारे के सारे बैक्टीरिया एक ही स्टेज में होना चाहिए. मीन्स इफ वन बैक्टीरिया इज इन एक्सपोनेंशियल फेज तो आपके सारे बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल फेज में ही होने चाहिए. सब ने हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाहिए. अगर वो स्टेशनरी रेट पे पहुंच चुके हैं, फेज पर पहुंच चुके हैं, तो कंप्लीट कल्चर शुड बी ना स्टेशनरी फेज. ऐसा ना हो कि हाफ ऑफ द कल्चर इज मेंटेनिंग द स्टेशनरी फेज एंड कुछ डिवाइड हो रहे हैं, कुछ रुक गए हैं, तो दैट विल नॉट बी अ सिंक्रोनस ग्रोथ. यहाँ पर क्या रहेगा? सिंक्रोनस growth of a bacteria such that all bacteria are at the same stage in their growth. Remember this thing, all bacteria are at the same stage of their growth. So in normal batch culture of fluid or an agar plant, bacteria in the population exhibit a ranges of sizes, ages, growth rates. अगर आप प्लेट पे ग्रो करते हो या बैच कल्चर में ग्रो करते हो तो कुछ बैक्टीरिया इनिशियल स्टेज पे रहेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन किसी का होता रहेगा, किसी की साइज सेल साइज इंक्रीज होते रहेगी. But in contrast, the bacteria in synchronized culture are virtually identical in terms of these parameters. When the bacteria are suspended in fresh growth medium, the population will subsequently grow and then divide at the same rate. So this synchronous growth, it is easy to maintain in the continuous culture. Continuous culture में हमारा ultimate aim होता है कि synchronous growth हम maintain करें. Another method of obtaining synchronous bacterial population involves the manipulation of some environmental factors that bacteria depend on for growth. Typically the factor is nutrient that bacteria cannot manufacture and so is required to be present in the medium. Sometimes that nutrient we also call the limiting nutrient. तो हम उसका concentration maintain करके भी आप बैक्टीरिया को synchronous growth वहाँ maintain कर सकते हो. synchronous bacterial population आप maintain कर सकते हो by controlling a particular nutrient factor. Then synchronous growth can only be maintained for a few rounds of growth and division. Actually this is a practical you can say problem. ये यहाँ पर आप continuously, even if theoretically we are talking about this synchronous growth, it is quite difficult to maintain after few rounds. Ultimately the inherent randomness of bacterial population growth again dominates. That is the problem with the practical cultures. In other words, not all the bacteria will continue to divide at exactly, and differences in size and other attributes will once again appear in the population.
For those few generations, however, much useful information can be extracted from synchronously growing population. So even if you are getting synchronously growing population for few generations, we can carry out number of testings, and the information it can be extracted from those actively multiplying synchronous growth. So that was all about the synchronous growth. Now next is dioxic culture. अब ये dioxic culture क्या होता है? We have seen the growth of bacteria or growth curve when the bacteria they are growing on single nutrient source. आपने एक सिंगल सोर्स रखा है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ कार्बन सोर्स, सिंगल कार्बन सोर्स, तो जो हमने ग्रोथ कर्व देखा है वो आपका एक ग्रोथ कर्व बन जाता है। मोनोक्सिक आप बोल सकते हो कि एक ही फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है कि ग्रोथ कम होगी कि ज़्यादा होगी, बट इन डायोक्सी द कंडीशन इज डिफरेंट. Microbial cultures those showing the dioxic growth are called dioxic cultures. अब dioxic growth क्या होती है? It means a double growth is caused by presence of two sugars on a culture growth media, one of which is easier for a target bacterium to metabolize. For example, पहले हम समझ लेते हैं डायोक्सी क्या होती है या डायोक्सिक ग्रोथ क्या होती है. You are taking a bacteria and then bacteria is able to grow on two carbon sources. For example, two sugars, एक ग्लूकोज है दूसरा लैक्टोज है. तो क्या करेगा बैक्टीरिया? ग्लूकोज पे भी ग्रो हो सकता है, लैक्टोज पे भी ग्रो हो सकता है. तो जब ये ग्लूकोज इसको मिलेगा, बट ग्लूकोज इज इजियर टू मेटाबोलाइज, तो पहले बैक्टीरिया सारा के सारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज कर लेगा. जैसे ही बैक्टीरिया ग्लूकोज यूज कर रहा है, यू विल सी दैट एक्सपोनेंशियल फेज, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ग्लूकोज डिप्लीशन विल स्टार्ट, आपको स्टेशनरी फेज दिखने लग जाएगा. बट अगेन द बैक्टीरिया विल गेट एक्लिमेटाइज, इट विल स्टार्ट यूजिंग द लैक्टोज, तो सेकेंड आपको एक्सपोनेंशियल फेज मिलेगा. तो ऐसे जहां आपको दो एक्सपोनेंशियल फेजेस मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायोक्सिक ग्रोथ. डायोक्सिक ग्रोथ और डायोक्सी और डायफेजिक ग्रोथ इन इज एनी सेल ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर ग्रोथ इन टू फेजेस. तो दो फेजेस में ग्रोथ होती है एंड कैन बी इलस्ट्रेटेड विद डायोक्सिक ग्रोथ कर्व. हियर वी आर गोइंग टू सी द डायोक्सिक ग्रोथ कर्व कैसे होता है, वो भी आपको दिख जाएगा. The preferred sugar is consumed first, as I have talked. ग्लूकोज है एंड लैक्टोज है, तो ग्लूकोज पहले प्रीफर करेगा, पहले सारा ग्लूकोज को वो खत्म कर देगा, पूरा यूज कर लेगा, एंड देन इट विल शिफ्ट टू दी लैक्टोज, फॉलोड बाय एक छोटा सा लैग फेज आएगा. लैग फेज में अगेन द बैक्टीरिया इट विल एक्लिमेटाइज इटसेल्फ टू दी सेकेंड शुगर, उसकी एंजाइम सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, एंड देन आपको सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज दिखेगा. ड्यूरिंग द लैग फेज द सेलुलर मशीनरी यूज टू मेटाबोलाइज द सेकेंड शुगर इज एक्टिवेटेड, दैट मीन्स वहाँ का एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा. सब्सिक्वेंटली द सेकेंड शुगर इज मेटाबोलाइज्ड. सो हियर यू कैन सी हाउ दिस डायोक्सिक ग्रोथ कर्व इट इज अ वाई एक्सिस पे अगेन हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ रेट है एंड एक्स एक्सिस पर टाइम है. तो हियर यू कैन सी एक छोटा सा लैग फेज है, देन ग्रोथ ऑन ग्लूकोज दिखाया हुआ है आपको डायग्राम में. ग्रोथ ऑन ग्लूकोज मीन्स दिस बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल इट इज यूजिंग ग्लूकोज एंड लैक्टोज, एज आई हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल ऑलरेडी. तो ग्लूकोज जब तक रहेगा एक एक्सपोनेंशियल फेज दिखेगा, कंटिन्यूस लॉग फेज दिखेगा, बट जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है आपको छोटा सा स्टेशनरी फेज दिख रहा है. दैट स्टेशनरी फेज इज एक्चुअली द लैग फेज फॉर सेकेंड शुगर. Here in this phase the glucose is completely utilized, completely metabolized, and lactose का mechanism, lactose के metabolism के लिए जो आपको मशीनरी लगी रही है उसका activation start हो जाएगा. Then again जैसे ही इसका enzyme synthesis complete होता है, it will start using the lactose and second exponential phase दिख रहा है. तो this is a biphasic growth. दो ग्रोथ आपको फेज दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डायोक्सिक ग्रोथ कर्व. This dioxic growth curve refers to the growth curve generated by an organism which has two growth peaks. दो peaks आए हैं, पहला peak है for glucose and second peak is for lactose. Here we can again explain this with the example of E. coli. The bacterium is grown on a growth media containing two types of sugar, one of which is easier to metabolize like glucose and another one is quite complicated, or you can say complicated than the glucose. First, the bacterium will metabolize all the glucose and grow at higher speed. Eventually, when the glucose has been consumed, the bacteria will begin the process of expressing the genes to metabolize the lactose. As we know, for lactose metabolism, we require beta-galactosidase, or you can say lactoperon activate हो जाएगा and वहाँ से आपका lactose utilization start होगा. This will only occur when all glucose media has been consumed. This is important in a biphasic growth or dioxic growth curve. पहले एक आपका सोर्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट डिप्लीशन हो जाएगा,
एंड देन दूसरा जो आपका कंपोनेंट रहेगा इट विल स्टार्ट मेटाबोलाइजिंग. फॉर दिस रीजन डायोक्सिक ग्रोथ अकर्स इन मल्टीपल फेजेस. So that is the reason why diauxic growth it occurs in the multiple phases. So that was all about the diauxic growth. Hope you got this. On the next one, so our last topic for this unit is factors influencing microbial growth. We have talked about the bacterial multiplication, that is reproduction, then we talk about the growth. But growth जो होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पे इफेक्ट डालते हैं. ग्रोथ कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा. So this is decided by some factors, and these factors they control growth of the microorganisms. तो कहीं भी आप ग्रो कर रहे हो, लेबोरेटरी कर रहे हो, हॉस्पिटल्स में कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में कर रहे हो, या जहाँ पर आप खुद नहीं ग्रो कर रहे हो, नेचुरली भी जहाँ बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ. Now these factors they can be categorized into two categories और two parts में आप इसको डाल सकते हो. एक होता है intrinsic factors and दूसरा होता है extrinsic factors. तो intrinsic factors क्या होते हैं? Intrinsic factors, these intrinsic factors these are inherent in the food. दे आर ऑलरेडी देयर इन द फूड. जो फूड के अंदर वाले रहेंगे उसको हम इंट्रिंसिक कहेंगे, एंड जो बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द फूड, मतलब उसका सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, तो इनको कहा जाता है एक्सटेंटिक फैक्टर. इंट्रिंसिक में क्या क्या आते हैं? पीएच आते हैं. पीएच इंट्रिंसिक रहेगा कि आप जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, जो उसका मीडिया है वहाँ का पीएच कितना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है वहाँ, वाटर एक्टिविटी कैसी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, देन न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा रखा हुआ है, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे कंप्लीट है क्या, बैक्टीरिया को सफिशिएंट है क्या. देन एंटी माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है कि कभी कभी बैक्टीरिया ग्रो होते टाइम कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं विच इज़ गोइंग टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर ग्रोथ. तो एंटी माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट्स का कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, इफ दे आर देयर. देन सम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देते हैं. तो दीज आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेचर. सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही खास होता है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि आप जितने भी बैक्टीरिया की बात करते हो, ईच जीनस स्पीशीज दे आर हैविंग a particular temperature which we call the optimum temperature where this bacteria they multiply happily. बड़े अच्छे से अपना ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे. दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट which is an environmental condition actually but controlling the growth. Then relative humidity, environment में कितना ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिडिटी का स्पेशली यहाँ पे रोल आता है जब हम फंगस के ग्रोथ की बात करते हैं, तो ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. लाइट भी मैटर करती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लाइट ऑल्सो मैटर्स. Then osmotic effects, so these are some of the extrinsic factors. So we are going to see this factors, some of the important factors indeed क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. तो let's start with these factors. So the very first factor which we are going to see which is affecting the growth of this bacteria is the pH, or you can say हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. आपके मीडिया का pH क्या है, जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. The most bacteria grow best at neutral or weakly alkaline pH. This is actually the most favorable range of the pH. We know about the pH. pH क्या होता है आपका, एक जो pH स्केल होती है आप उस पर pH को मेजर करते हो 1 to 14. तो कभी कभी आप 0 से भी हो सकता है कहीं 0 से भी लिखा हुआ दिख जाए, बट 1 to 14 हम इन जनरल सेंस वी टॉक अबाउट द 1 to 14, जिसमें से 1 to 7 तक या आप बोल सकते हो 6.9 तक एसिडिक होता है. देन 7 इज द न्यूट्रल एंड अबव 7 जितना रहेगा 14 तक दैट इज कॉल्ड द अल्कलाइन पीएच. तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे प्रेफर टू ग्रो ऑन द पीएच और बिटवीन द पीएच फ्रॉम 6.8 to 7.5. यू कैन से न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन, ये रेंज में बैक्टीरिया प्रेफर करते हैं. सबसे बड़ा ग्रुप बैक्टीरिया का, ये मैक्सिमम बैक्टीरिया दे प्रेफर दिस रेंज ऑफ द पीएच. नाउ सम बैक्टीरिया दे ग्रो विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ द 4.5 and 9, एग्जाम्पल साल्मोनेला. देन कुछ होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली यीस्ट एंड मोल्स एंड सम बैक्टीरिया ग्रो विद इन द वाइड पीएच रेंज.
ये रहेंगे 1.5 से 11 तक के pH रेंज जो प्रीफर कर सकते हैं, while yeast grow between 1.5 to 8.5. So there are different pH ranges. Even some bacteria, they can grow only on the acidic pH, those we call the acidophiles, acidophilic bacteria. कुछ ग्रो होते हैं सिर्फ हाई pH पर, अल्कलाइन pH पर, हम उनको अल्कलोफाइल्स बोलते हैं. तो लाइकवाइज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर prefer different pH. So optimum pH is also very important. The favorable pH for the growth is very important factor to control the growth of bacteria. Second is the moisture content, कि मीडिया का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, दैट इज द वाटर एक्टिविटी, कितना आपके मीडिया के अंदर मॉइस्चर है. द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर is in terms of the water activity. The amount of free water is important for growth of microorganism. If there is lack of free water, microorganisms will not grow. वाटर कम है, ग्रोथ नहीं होगी. तो वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1. ये हमको पता है कि वाटर एक्टिविटी जो होती है, वाटर एक्टिविटी वेपर प्रेशर का रेशियो होता है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट वाटर एक्टिविटी, उसके फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे, बट जस्ट यहाँ पे याद रखना है. एंड द फूड प्रोडक्ट्स दे आर हैविंग वाटर एक्टिविटी लेस देन 1. A saturated salt solution has a water activity of 0.75 and salting and drying reduces the water activity. अगर आप फर्दर सॉल्ट ऐड करते हो या ड्राई करते हो तो वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की. एंड अगर वाटर एक्टिविटी बहुत कम रहेगी तो बैक्टीरिया वहाँ नहीं ग्रो हो पाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो पाएगा. एंड दैट इज द रीजन to increase the shelf life of most of the food products, we dry them. हम उनकी ड्राई कर देते हैं. उनको ड्राई करना मतलब क्या है, आप उसमें से मॉइस्चर को ख़त्म कर रहे हो. मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा. Growth of microorganism is greatly affected by the level of water activity in the food. Inhibition of growth occurs if the water activity for food is lowered beyond an organism's minimum level of water activity that is necessary for the growth. And that is the reason कि आपके ड्राइड जो फूड होता है वो ज़्यादा दिनों तक रहता है एज कम्पेयर टू जहाँ पर वाटरी फूड है या लिक्विड है, ये कम दिन तक वहाँ पर रह सकता है, शेल्फ लाइफ कम होती है. Microorganisms have varying minimum water activity requirements that supports their growth in the food. So that was about the water activity. Nutrient content. अब बात करते हैं nutrient content की. Nutrient content is again very important to control the growth. And we have already talked about in the previous unit, we have talked about the nutritional requirement of the bacteria. उसका classification देखा था हमने, क्या nutritional requirement होती है. macronutrients लगते हैं, micronutrients लगते हैं. macronutrients कौन कौन से, carbon source, nitrogen source, everything we have seen in detail. So this nutrient content, they are also controlling the growth of bacteria. As we have seen, एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो जिसको हम ओलिगोट्रोफिक बैक्टीरिया कहेंगे, जिनका कुछ खास न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कम न्यूट्रिएंट पे भी वो ग्रो हो जाते हैं. बट सम आर देयर, फास्टिडियस बैक्टीरिया आर देयर, दे रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट. उनको कुछ खास न्यूट्रिएंट लगते हैं तभी वो अच्छे से ग्रो होंगे. दैट्स व्हाई दिस न्यूट्रिएंट्स दे आर कंट्रोलिंग द ग्रोथ. The microorganisms need nutrients such as proteins, carbohydrates, sulfur, phosphorus, vitamins, lipids, water, energy, nitrogen, and minerals for their growth and carry out metabolic functions that we know very well. Food is the best source of nutrition, so we can get all these things from the food. जो मीडिया है हमारे बैक्टीरियल मीडिया, वहाँ सारे हमको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. And microorganisms that are commonly found in food vary greatly in nutrient requirements, and those which can utilize available nutrition in abundant amount are usually predominant in foods. जिसको हम ओलिगोट्रोफिक ग्रुप बोलते हैं कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उसको यूज कर लो एंड सरवाइव कर लो. तो ये बैक्टीरिया आपको अबंडेंस में मिलेंगे, उनका डोमिनेंस रहेगा इन दी फूड एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया विच आर चूजी. उनको खास कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए. द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. The nutritional requirement of gram positive bacteria are higher compared to yeast, then followed gram negative. मतलब आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पे भी ग्रो हो जाता है. yeast and सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है that is the gram positive bacteria. and the molds they are having lowest nutrient requirements. molds कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, सिंपलेस्ट मीडिया पर भी वो ग्रो हो जाएंगे. एंड दैट इज द रीजन आपको हर जगह मोल्ड ग्रोथ दिखती है. बस उनको एक फेवरेबल मॉइस्चर मिल जाए, ह्यूमिडिटी मिल जाए, एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर. Okay, so then next factor is the antimicrobial constituents.
एंटीमाइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ये भी एक इंट्रिंसिक फैक्टर है. वेरियस फूड्स हैव इनहेरेंट एंटीमाइक्रोबियल कंपोनेंट. कुछ फूड्स के अंदर ही कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो दिस कंपोनेंट्स दे आर गोइंग टू कॉज सम इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड माइक्रोबियल प्रिवेंट द माइक्रोबियल अटैक ऑफ वेरियस फूडबोर्न पैथोजेंस. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. द फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कंटेन एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो फ्रूट्स के अंदर होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट, and this anthocyanin pigment it prevents the bacterial growth, it inhibits the bacteria to grow on the fruits देखोगे आप जनरली कभी भी बाहर से बहुत अच्छे कलरफुल फ्रूट्स होते हैं तो उनकी जब कवरिंग होती है उसमें जो पिगमेंट होता है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और वही आप कट करके रखोगे तो वहाँ पे जल्दी कंटेमिनेशन हो जाएगा. देन दूसरा है पीनट्स जो होते हैं, इसमें एक कंपाउंड होता है दैट इज डाइमिथॉक्सी आइसोफ्लेवोन, इट विल रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ एस्परगिलस फ्लेवर्स. देन ऑयल्स की बात करें, ऑयल्स के अंदर सिनामाल्डिहाइड होते हैं वो जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा. लाइक नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन हियर. टर्मरिक में करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन विल वी नो दैट द टर्मरिक दे आर एंटीबैक्टीरियल इन एक्टिविटी. तो एंटीबैक्टीरियल क्यों होते हैं, वो करक्यूमिन के कारण होते हैं. करक्यूमिन बहुत सारे बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है लाइक साल्मोनेला टाइफी, लिस्टेरिया, इकोलाई, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये सबको ये इनहिबिट करेगा. जो गार्लिक होता है, गार्लिक में कंपोनेंट है एलिसिन, it will inhibit gram positive as well as gram negative bacteria. So these are different antimicrobial constituents of the food which will restrict the growth of this particular organisms. So that is the thing, these intrinsic factors they are going to cause effect on the growth of the bacteria. The next, biological structures. Some of the foods have biological structure that prevent the microbial entry. अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हो, but somewhere it is there. Like for example, if we talk about the meat, मीट का जो स्किन होता है, अगर ऊपर में स्किन है एंड जो मेम्ब्रेन्स है, इट विल नॉट अलाउ द माइक्रोब्स टू एंटर इनसाइड. अगर ये स्किन या ये मेम्ब्रेन्स निकाल दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स निकाल दिए जाते हैं, तो कंटेमिनेशन या ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी. देन एग्स, द एग्स दे हैव शेल्स and inner membranes which prevent the yolk or egg white from the infection or the growth. मतलब वहाँ पर आपका बैक्टीरिया नहीं पहुँच पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा. Then now let's talk about the extrinsic features or extrinsic factors, जिसमें सबसे important आता है temperature. Temperature it controls the growth of microorganism. The growth of microorganism is affected by the environmental temperatures. कहाँ grow हो रहा है वो environment का temperature बहुत ज़्यादा effect करेगा growth पर. Various microorganism able to grow at certain temperatures and not others. Now that is the specificity you can call. कुछ microbes होते हैं एक particular temperature पे grow होंगे and वो temperature अगर उनको नहीं मिलता है तो उनका growth halt हो जाएगा, रुक जाएगा. Bacteria can therefore be divided into following groups. Here some of the bacterial groups are given on the basis of their optimum temperature requirement. जो मोस्ट फेवरेबल रेंज है उनका, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज साइक्रोफिलिक, जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं. वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. देन जो ग्रुप आता है मीजोफिलिक, ये सबसे बड़ा ग्रुप आपते हो, मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप में मिलते हैं. एंड द थर्ड ग्रुप विच इज थर्मोफिलिक, जिनको थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, उनको डाला जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में. सो लेट्स सी दिस ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप दैट इज साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. साइक्रोफिलिक क्या होते हैं? दिस ग्रो बेस्ट एट अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा लो टेम्परेचर रेंज इनको पसंद है, बूस्ट टेम्परेचर पे ही अपना अच्छा सा ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं. एंड ऑल्सो डाउन टू -10, सम साइक्रोफाइल्स दे कैन ग्रो इवन एट -10 डिग्री सेल्सियस इन अनफ्रोजन मीडिया. द कंडीशन इज दैट द मीडिया शुड नॉट बी फ्रोजन स्टेट. देन साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कैन कॉज फूड स्पॉइलेज एट लो टेम्परेचर. तो आप जो फूड फ्रिज में रखते हो, कभी कभी फ्रिज में रखने के बाद भी फूड खराब हो जाता है. तो रीज़न इज दैट अगर वहाँ साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है तो वो ऑब्वियसली ख़राब आपके फूड को स्पॉइल करने ही वाला है, बिकॉज वो उस टेम्परेचर पे बड़े अच्छे से ग्रो हो रहा है. नाउ सेवरल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल एंड वाटर बिलोंग टू दिस ग्रुप. तो जो आप ठंडा पानी देखते हो या सॉइल में भी बहुत जगह साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स इजीली आपको मिल जाएंगे. The next group is mesophilic bacteria. These organisms grow between 25 to 40. ये इनका रेंज है 25 to 40, बड़ा फेवरेबल रेंज है. एंड वी नो दैट ये टेम्परेचर रेंज हर जगह हर किसी को पसंद आने वाला रेंज है, एंड दैट्स वाई
you can see number of bacteria, they are growing in this range with an optimum growth at close to the 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। एंड इसीलिए इस ग्रोथ, इस टेम्परेचर पे हमको सारे के सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो मैक्सिमम यही टेम्परेचर में मिलते हैं, मीजोफिल टाइप के होते हैं, मीजोफाइल्स होते हैं। Some such as Pseudomonas aeruginosa may go at even lower temperatures and इसका रेंज काफ़ी लंबा है Pseudomonas का, that is 5 to 43. Now none of the mesophilic bacteria are able to grow below 5. कुछ कर लेते हैं हिम्मत 5 तक ग्रो होने की, बट आपको 5 के नीचे कोई भी मेसोफिलिक बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, एंड 45 के ऊपर, और मिलता भी है तो फिर हम उसको मेसोफाइल्स नहीं कहेंगे। इफ इट इज बिलो 5 it will go into the psychrophilic group, and if it is above 45 it will go into the thermophilic group. Now most pathogenic bacteria, they belong to this group, that is mesophilic bacteria. Then next is a thermophilic bacteria. This grow at temperatures above 45 degree Celsius. Higher temperature पे आपको जो मिल रहे हैं, these are the thermophilic bacteria. थर्मोफाइल्स भी कहा जाता है इनको। ऑफन देयर ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर्स आर बिटवीन 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकते हैं, एंड इवन वी आर हैविंग द हाइपर थर्मोफाइल्स विच कैन ग्रो इवन एट बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो हो सकते हैं। देयर आर फ्यू बैक्टीरिया विच कैन ग्रो एट हायर टेम्परेचर। आर्किया आते हैं स्पेशली इसमें। ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया अकर एट 80 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर सम बैक्टीरिया. Bacteria in this group are mainly spore formers and are important in the food industry, especially processed food. Processed food में ये बहुत actually dangerous group है। प्रोसेस फूड में ये मिल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कैनिंग एंड पैकेजिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे की जाती है, एंड इवन दैट बैक्टीरिया इज सर्वाइविंग दैट टेम्परेचर, उसका स्पोर फॉर्म वो टेम्परेचर सर्वाइव कर लेता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा इट विल अगेन जर्मिनेट एंड वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर फूड स्पॉइलेज कर सकता है, वहाँ ग्रो हो सकता है। सो दैट वर द ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरमेंट, जो इफेक्ट करने वाला है बैक्टीरियल ग्रोथ पे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करते हैं कि आपके सराउंडिंग में कितना ऑक्सीजन है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि उनको ऑक्सीजन बड़ा अच्छा लगता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, जिनको हम एरोबिक कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन बहुत कम चाहिए, जिनको कहा जाता है माइक्रो एरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक। एंड सम दे स्ट्रिक्टली डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन, दे ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिनको हम एनारोबिक कहते हैं। Okay, so this relates to the presence of concentration of gases in the food environment. Various microorganisms require for growth either high oxygen tension, if high oxygen is required, aerobic or aerophilic, then low oxygen है तो micro aerophilic, and if complete absence of oxygen is required, anaerobic. अब यहाँ पर भी दो टर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा ऑक्सीजन अगर रहे तो दे कैन टॉलरेट, दोज आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, टॉलरेट कर लेंगे, बट सम आर देयर जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चलेगा, हम उनको डालेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, द ऑक्सीजन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दैट विल बी ऑब्लिगेट एनारोब्स। नाउ एग्जांपल्स आर हियर। Anaerobic or facultative anaerobic spore formers are most likely to grow in canned foods, जो packed foods होता है आपका, processed food होता है, वहाँ पर generally anaerobes मिलते हैं। Then like Clostridium perfringens, ये बहुत common है, जो कि poisoning भी कर देता है food की। Then micro aerophilic bacteria are most likely to grow in vacuum packed foods, जो वैक्यूम पैक्ड फूड्स रहेंगे वहाँ आपको मिलेंगे माइक्रो एरोफिलिक। देन एरोबिक बैक्टीरिया आर लाइकली ग्रो एट द सरफेस ऑफ रॉ मीट, भाई बहुत सारा ऑक्सीजन होना चाहिए तभी एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होगा। एंड एरोबिक मोल्ड्स विल ग्रो इन insufficiently dried or salted products. So these are different groups of bacteria depending on the presence of gases, especially the oxygen in their surrounding. Then last one we'll talk about some implicit factors. हमने इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात कर ली, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ इम्प्लिसिट फैक्टर्स की। मतलब आप बोल सकते हो नॉन अवॉइडेबल, जो ऑलरेडी वहाँ पर है ही, जो रहेंगे ही। तो दिस इम्प्लिसिट फैक्टर्स दे आर आल्सो गोइंग टू कॉज सम इफेक्ट ऑन दी ग्रोथ।
Implicit factors are important in determining the nature of microbial growth in food. These factors defines the properties of organism themselves and how they respond to such environments. ये जो factors होते हैं ये organism के खुद के होते हैं and वो एक अनअवॉइडेबल फैक्टर्स आप इनको बोल सकते हो एंड ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन inhibit or stimulate the growth of one another. Some various actions and reactions that may harmful or beneficial for microorganisms like predation है, parasitism है, commensalism है, amensalism, allotrophy, symbiosis, neutrality. So these are the associations between these microorganisms and they will just behave in the implicit factors. The organisms may produce substances that are either inhibitory or lethal to the other organisms such as antibiotics, bacteriocins है, hydrogen peroxide है, organic acids hai, so all these will come under the implicit factors. So that was all about your unit 2 microbial growth. Hope you like this videos, आपको समझ में आया होगा. If you like this, please subscribe my channel Learn Lifeology, like it, share it, and please do comments in the comment box. You can comment what things you like. अगर आपके कुछ suggestions है, you can put your suggestions there. Again, thank you very much.